Now in this lecture, we are going to study about the branch accounts. That is, and in the branch account also, we are going to specifically study about a foreign branch. As I told you, that branch accounting we all have studied in the FY BAF second semester. There we have studied about the dependent branch, and the dependent branch also we have studied the two methods, debtors method and the stock and debtors method. Then in the SY, that is in the semester number 3, we have studied about the accounting for the foreign currency as per AS 11. And then in this semester, we are going to study about basically of a foreign branch. Now, what is a foreign branch? A branch which is situated outside the home country in which the HO is there, home country, but जहां पर HO situated है, it is called as a foreign branch. Now, अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ऐसे ब्रांच विच इज आउटसाइड द होम कंट्री बट इन विच द एचओ इज सिचुएटेड एज, उसको हम कैसे फॉरेन ये करेंगे, उसको फॉरेन ब्रांच हम कैसे कहेंगे? सी क्लास, सो हियर आई विल से दैट वी हैव अ टू केसेस. हियर वी हैव अ टू केसेस. फॉर एग्जांपल, या तो एचओ सिचुएटेड इन इंडिया एंड द ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, or is HO situated in the foreign and the branch is in India. In the both the cases, it will be considered as a foreign branch. तो हमारी होम कंट्री से बाहर जहां भी HO हमारा सिचुएटेड होगा उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन ब्रांच. So accounting and principles which are being applicable to the home branch is also applicable to the foreign branch. Say for example, अगर मैं मेरे operations, I have a HO in this Mumbai and I have my branch in the Singapore. तो क्या मैं दोनों के एट द एंड ऑफ द मुद्दे को, मुझे अपने जो भी फॉरेन के ट्रांजैक्शन है उसको मुझे अपने होम करेंसी में लेके आना है. तो व्हाट आई विल डू, कैन आई जस्ट ऐड इंडियन रूपी एंड द सिंगापुर का करेंसी टुगेदर? ऑब्वियसली नो, आई कैन नॉट एड इट अप. मैं दोनों को ऐड नहीं कर सकती. तो हियर बिकॉज व्हाई, व्हाट इज द रीजन? दोनों जो करेंसीज है, दे बोथ द करेंसीज आर डिफरेंट. Then so we need to do the conversion. So for the doing the conversion, which rate should be used? And because see, अगर देखोगे तो foreign currency में daily there are the fluctuation. So अभी just because of the fluctuation मुझे क्या use करना है, मैं कौन सा rate use करूँ? Obviously this will be a question. तो इसका जो भी आंसर है हमें वो किस कहाँ पर मिलेगा? We need to refer AS 11 for the same. That what is AS 11? AS 11 is accounting standard 11, that is effect of the changes in the foreign exchange rates. There we are going to get the whole of the brief overview about the कि कैसे treatment होगी यहाँ पर. Okay, now our foreign branch के जितने भी this foreign currency translations is divided into a two parts. Again I am repeating, foreign currency translations, I am talking about the translations, they are divided into a two parts. One is integral foreign operation, another one is a non-integral foreign operation. One is integral foreign operation, another one is a non-integral foreign operation. Now first, before going ahead, we need to study the meaning of what is the integral foreign operation and what is a non-integral foreign operation. Now integral का मतलब क्या होता है? Inside, integrated मतलब inside, or you can say inherent part. Correct? So integrated, when I say about the integrated foreign operations, इसका मतलब ये completely, ये सारी जो ट्रीटमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द एचओ, वो कंप्लीटली अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है. जो भी आपकी एचओ की एक्टिविटी होगी, जो भी आप, वो ही आपका, इसका ही एक्सटेंशन किसका होगा? ये ब्रांच की एक्टिविटी का होगा. सो इट्स ऑपरेट्स जस्ट लाइक अ एचओ बट इट इज ओनली द एक्सटेंशन ऑफ द एचओ.
इसकी जो भी एक्टिविटीज जो भी होगी वो एचओ की जैसी ही होगी, बस ये सिर्फ थोड़ा एक्सटेंशन है हमारे एचओ का. सो आई कैन जस्ट से दैट इट वर्क्स जस्ट लाइक एन एचओ ओनली. दैट इज जस्ट जैसे हेड ऑफिस में जैसे चलता है वैसे ही यहाँ पर भी इसका अकाउंटिंग होता है. So a foreign operation activities which are integral part of those, integral matlab inside part of your reporting enterprise is called as integrated foreign operation, that is IFO. For example is your foreign branch. आपकी जो फॉरेन ब्रांच है वो क्या है, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन. वो क्या करती है, यहाँ की जो एक्टिविटीज है वही एक्टिविटीज वो कैरी करती है. दे आर कैरिंग द सेम एक्टिविटीज, बस. सो इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन पार्ट. वो क्या है, सिर्फ एक्सटेंशन पार्ट है उसका. कैन यू ऑल जस्ट गिव मी सम एग्जांपल? कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसा? Yes, you need to know first that the see generally एक independent branches भी होती है and foreign branch को भी अपना जो भी accounting होता है they have to maintain their complete accounting records. As I told you, if HO is in India, ठीक है, तो and branches outside India, then also it will be treated as what? It will be treated as a foreign branch. Now HO is outside India but branches are in India, then also it will be treated as what? Foreign branch. अगर आपका एचओ इंडिया में है तो आपके जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे वो तो रुपीज में होंगे, इंडियन करेंसी विल बी यूज्ड. अगर से फॉर एग्जांपल आपके ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, सॉरी एचओ इज आउटसाइड इंडिया एंड ब्रांचेस आर इन इंडिया, तो जो भी आपके कंट्री में आपका एचओ सिचुएटेड है आपको अकाउंटिंग उसके हिसाब से करनी पड़ेगी. करेक्ट. तो बेसिकली आपको कौन सी करेंसी लेना है, जहां भी आपका एचओ सिचुएटेड है ना जो कंट्री में, आपको उसके आपका अकाउंट्स उसमें मर्ज होगा. नाउ व्हेन आई से कि एचओ इज इन इंडिया बट ब्रांचेस आर आउटसाइड इंडिया, देन द बेस्ट एग्जांपल, यू नो, इफ यू सी दिस डेज इन द न्यूज़पेपर आल्सो दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ कल्याण ज्वेलर्स. कल्याण ज्वेलर्स का क्या है, एचओ इज इन इंडिया वेयर इज द ब्रांचेस इज आउटसाइड इंडिया. सेम वे हल्दीराम का भी सेम है, एचओ इज इन इंडिया, ब्रांचेस आर आउटसाइड द इंडिया. देन इन द सेकंड केस, जैसे मैंने आपको बोला कि एचओ इज आउटसाइड इंडिया बट ब्रांचेस इन इंडिया, ऐसे केस के एग्जांपल्स क्या है, योर कोको कोला, डोमिनोज, ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम इट आल्सो यू हैव मेनी अदर दिस, यस, मैकडोनल्ड इज अनदर एग्जांपल. सो here what happens ना, एचओ के अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट इज आई कैन से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं, ठीक है, जो भी हमारे एफएस दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हम बनते हैं वो मेंटेन होते हैं इंडियन करेंसी में. व्हेन आई स्पीक व्हेन द एचओ इज इन इंडिया एंड द ब्रांचेस आर आउटसाइड इंडिया, एंड जो भी आउटसाइड के ब्रांचेस होंगे, ठीक है, अकाउंटिंग विल बी मेंटेन इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री का करेंसी. यूएसए का होगा तो यूएस डॉलर्स में होंगे, दुबई का होगा तो इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द दिरहम. So this problem arises, or I can say the problem happens during the time of integration. क्योंकि ब्रांचेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आखिर में उसको आके किस में मर्ज होना है, एचओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. सो अगर हल्दीराम की ब्रांचेस इन दुबई, अगर हल्दीराम की जो भी ब्रांच है अगर वो दुबई में है तो ऑब्वियसली उसकी जो अकाउंटिंग हुई होगी वो कौन से करेंसी में हुई होगी, दिरहम में हुई होगी. अब मुझे उसको इंडियन रुपीज में कैसे मैं इंटीग्रेट करूं, ये जो भी दुबई के फाइनेंशियल्स जो मेरे बने होंगे दिरहम में, उसको मुझे इंडियन रुपीज में इंटीग्रेट करना है. एंड एज आई टोल्ड यू आई कैन नॉट सिंपली ऐड द इंडियन रुपी विद द दुबई का दिरहम. नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. And even because there is always a foreign exchange fluctuations which is happening, the rates are always getting changed, so it's become very much difficult ना. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, here we should translate or and use the trial balance items. We should translate our trial balance. हमें हमारे करेंसी में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा. So when the trial balance is translated, what I mean by translated का मतलब होता है converting trial balance of the branch
to the currency of HO. If you want, you just write it down somewhere. Converting the trial balance of a branch to the currency of a HO. So the trial balance is translated over here from the one currency to the another currency. तो हम जब भी ये ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे भी हम कन्वर्टिंग करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, there arises a foreign exchange difference. देखो, there arises what? Foreign exchange difference arise होता है. Just because of the constant fluctuations in the exchange rate, because of the international arising of the demand and supply, demand supply अलग से है. तो यहाँ ट्रांसलेशन इट्स प्लेज. देखो, आपके जो सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, अगर वो दूसरे कंट्री में अगर खेलने जाते हैं या तो परफॉर्म करने जाते हैं, तो दे गेट अ पेमेंट इन देयर करेंसी, वो कंट्री की जो करेंसी में. ऑब्वियसली अब वो जब इंडिया आएंगे तो उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उनको अकाउंटिंग तो इधर की ही करेंसी में करनी पड़ेगी. Correct na? So here the trial balance will be made by converting the branch account के जितने भी transactions होंगे to the HO के currency में. समझ में आया? And this translation will be divided into integral foreign exchange and the non-integral foreign exchange. Integral में सब कुछ कहाँ पर depend होगा? It will get depend upon the HO. जो भी HO नॉर्म्स देंगे वो सारे नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. And the main activity of the branch will be that of the HO only, but there will be an extension of the HO as well. Whereas when I say about the non-integral foreign operations, the non-integral foreign operation does not depend upon the HO. Okay, they usually have some other operations as well. यहाँ पर जो भी ब्रांचेस है वो अपने जो भी बिजनेस है वो कैरी कैसे करती है? इंडिपेंडेंटली. दे कैरी देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली. दे आर नॉट इंटीग्रल. सी, so they are not dependent on the HO as well. So branches carry their business independently. Even though, देखो क्लास, नाम किसका यूज होगा? नाम HO का ही यूज होता है. गुड्स भी कहां से आएंगे? गुड्स भी HO से ही आएंगे. सारा वर्क जैसे हो रहा है वैसा ही होगा, बट स्टिल दे विल एंजॉय द इंडिपेंडेंस. दे विल नॉट बी डिपेंडेंट. सब कुछ नाम HO का यूज होगा. अभी जैसे मैकडोनल्ड्स है, नाम मैकडोनल्ड्स का यूज होगा. गुड्स भी से फॉर एग्जाम्पल वहां से ही आएंगे, HO से ही आएंगे, बट जो इंटरनल जो वर्क है, द वर्क दे विल बी एंजॉइंग देयर इंडिपेंडेंस. समझ में आ रहा है? सी, सो व्हेन आई से, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि डिफरेंस अराइजेस. So whenever the difference arises, it can be because of the integral foreign operation, which is dependent, inherent part, and it can be because of the non-integral foreign operation, मतलब independent completely. तो यहाँ पर हमें recognize करना पड़ेगा कि हमें कौन से basis पर how to decide the rates, हमें कैसे rates को हम decide करेंगे. So we have to recognize कि whether वो income है या वो expenses है. We will have to recognize it up, and then we will have to disclose this in the either profit and the loss account. Same way, non-integral का क्या होगा? Accumulated in the foreign currency translation reserve, and then it will be disclosed in the balance sheet. ये disclose होगा P&L account में, क्योंकि यहाँ पर हम deal करते हैं income and expenses से. And here एंड हियर ऑल जितना भी जो भी आपका एक्यूमुलेटेड फॉरेन करेंसी होगा वो रिजर्व बन जाएगा उसका, एंड इट विल बी डिस्प्लेस्ड इन द, नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट. कैसे क्या? वेट, वी विल स्टडी दिस अहेड. नाउ हाउ दिस कन्वर्जन इज मेड, हाउ दिस फॉरेन ब्रांच का कन्वर्जन इज बीन मेड. So as I told you कि we will be translating this into the trial balance. So trial balance is on. फिर जो भी HO होगा, HO के हेड्स ऑफ द अकाउंट, सॉरी हेड्स ऑफ द अकाउंट्स के जितने भी अकाउंट्स होंगे आपके, आपका उसका कंप्लीट यू हैव टू राइट डाउन द नेम, देन लेजर फोलियो, करेंसी, डेबिट रुपीज, जो भी वहां की करेंसी होगी. से फॉर एग्जांपल आपका बना है डॉलर्स में, ठीक है, तो यू हैव टू, योर ब्रांचेस इन द US एंड यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल योर अकाउंटिंग एज पर द डॉलर्स, so you have to just put it over here the dollars,
रेट ऑफ एक्सचेंज आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा रेट आपको लेना है. आप एवरेज रेट लोगे, आप क्लोजिंग रेट लोगे, आप ओपनिंग रेट लोगे, आप क्लोजिंग रेट लोगे, बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट द रेट्स इन द सेमेस्टर 3. सो वी हैव टू डिसाइड कि डिपेंडिंग अपॉन द हेड्स कौन से चीज कौन से रेट में जाएगा. एंड देन लेटर ऑन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द योर होम करेंसी, दैट इज जो भी आपकी रुपीज, जहां भी एचओ सिचुएटेड होगा वो करेंसी में आप उसको चेंज कर दो. समझ में आया? यस क्लास. सो दिस ट्रांसलेशन, ठीक है, this translation of a foreign financial statements are been done as per which standard? This is done as per the standard 11, accounting standard 11. This can be asked even in the MCQ as well. And as I told you, मैंने आपको इंटीग्रल फॉरेन एक्सचेंज का ये भी बोला कि जो भी एक्टिविटीज है वो कैसे होगी. द मेन एक्टिविटी इज दैट ऑफ द एचओ ओनली. ये सिर्फ क्या है, एक एक्सटेंशन है एचओ का. So see, it is also given कि it is nothing but it is just an extension of a HO, that is reporting enterprise. Now, इसका जो भी translation है, how this translation has been done, ठीक है. Now, first we are going to study about the integral, integrated, that is integral foreign exchange का कैसे translation होता है, पहले हम वो देखते हैं. आपके जो भी आइटम्स होंगे ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस के, इंटीग्रल में, दैट इज IFO, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस में जो भी आपकी आइटम्स होंगी इनकम एंड द एक्सपेंसेस के रिलेटेड, ओके, देन दे विल गेट चेंज एज पर द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. जो दिन पर ट्रांजैक्शन हुआ वो रेट पर जो रेट है वो, या तो फिर ऑन अ एवरेज रेट, या तो फिर ऑन एन एवरेज रेट, या तो एक्चुअल रेट पर या तो एवरेज रेट पर. इट्स रिटर्न ओवर हियर. अब देखो, वी विल बी हैविंग अ n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से हमें अब ये हम ये ईयर एंड पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो कितने सारे ट्रांजैक्शन होंगे. अब कौन से दिन पर कौन सा ट्रांजैक्शन का कितना प्राइस चल रहा था वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए भी चेंज करना, एंड इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम. सो आप जल्दी से तो रेट ऑफ, अगर एक आध दो ट्रांजैक्शन हुआ या तो 10 या 15 ट्रांजैक्शन हुए तो आप यू कैन टेक अ रेट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, जो डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ वो दिन पर जो चल रहा था. बट अदरवाइज यू विल हैव टू टेक द एवरेज रेट ओनली. व्हाट इज एवरेज रेट? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2. And remember one thing, this translation has been done at the end of the year. When it has been done, it has been done at the end of the year. समझ में आ रहा है? Now, next one. If there is a item of a balance sheet, ठीक है, बैलेंस शीट की अगर आइटम्स है तो हमें यहाँ पर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा. But we have studied about the monetary items and we have studied even about a non-monetary items. ठीक है, what were the monetary items? वो सारे असेट्स जो भी रेडीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, उसको हम मॉनिटरी आइटम्स बोलते हैं. एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स मतलब वो सारे असेट्स जो इमीडिएटली हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो इमीडिएटली जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते वो हमारे कैसे असेट्स होंगे? ऑब्वियसली द फिक्स असेट्स, करेक्ट. तो हियर इट डिपेंड्स अपॉन कि विच आइटम इज देयर, मॉनिटरी आइटम है कि नॉन मॉनिटरी आइटम है. अगर मॉनिटरी आइटम होगा तो देन द क्लोजिंग रेट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन. then the closing rate is taken into the consideration. Okay, closing rate याद रखना. हाँ, और अगर आपके नॉन मॉनिटरी आइटम्स है then the rate of the date of transaction is taken into the consideration. Okay, नॉन मॉनिटरी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि all your fixed assets will come inside it. तो एज आई टोल्ड यू, नॉन मॉनिटरी आइटम्स किसके ऊपर लिया जाएगा? रेट ऑन द डेट ऑफ द परचेज. जो भी एक्सचेंज रेट आपका चल रहा था ऑन द डेट ऑफ दैट परचेज, दैट विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन.
समझ में आया? और यही चीज अगर मॉनेटरी होता तो क्या करते? ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टेकन द क्लोजिंग रेट। ठीक है ना? जो भी इसके वजह से डिफरेंसेस अराइज होंगे, any differences which will get arise due to this conversion in the system of integrated foreign operation, वो जाएगा हमारा either debit or a credit, it will directly charge to the profit and loss account. Very important, very 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 important. Okay, any difference which is arising due to the translation over here, it will be charged in the profit and loss account. ये हमने किसके बारे में बात की? ये हमने बात की इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, दैट इज IFO. Now, in the next class, we are going to study about the non-integral foreign operations. हमने ये तो मीनिंग पढ़ लिया कि non-integral foreign operation is it's not dependent upon the HO. They have usually the other operations as well, and they carry the business independently. अभी जैसे हमने यहाँ पर इसके देखे ना कि कौन से रेट्स में चेंजेस होते हैं, वहां हमें ये भी देखना है कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन जब ऑपरेशंस होंगे, दैट इज NIFO, तो वो किस में चेंजेस होगा, कौन सी तब कौन सी रेट्स लेनी पड़ेगी हमें. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी दिस. इवन वी कैन सी राइट नाउ, हम थोड़ा सा एक ये कर सकते हैं. आई कैन जस्ट टेल यू दैट के नॉन इंटीग्रल जो भी फॉरेन के, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना आइटम्स ऑफ द दिस इनकम एंड एक्सपेंसेस, हियर आल्सो द इनकम एंड एक्सपेंसेस के जो आइटम्स होंगे वो एवरेज रेट पर ही होंगे, इधर एवरेज रेट और यू कैन टेक द रेट ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस. और जो भी आपकी बैलेंस शीट की आइटम्स होंगी, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी, बोथ विल बी रिकॉर्डेड इन द क्लोजिंग रेट. देखो, दिस वाज नॉट इन द केस ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रल में क्या था? मॉनेटरी ऑन द क्लोजिंग रेट, वेयर इज नॉन मॉनेटरी ऑन द रेट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. Whereas when you are doing the non-integral foreign operation, there the items of the balance sheet, that is monetary item and the non-monetary items, both will get converted into the closing rate. So keep this in the mind. और यहाँ पर जैसे फॉरेन हमारे, ऑब्वियसली सी देयर विल बी अ डिफरेंस, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होने ही वाला है. तो ये भी यहाँ पर जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस होंगे, दैट विल बी ट्रांसफर इनटू द रिजर्व. ठीक है, वो कहां पर? वो सीधा चला जाएगा रिजर्व में, दैट इज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व. देखो, हमने ये चार्ट में भी पढ़ा था ना ऊपर. सी रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो हमने इसके बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि डिफरेंस गोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके ऊपर अगर कुछ ऐसा अराइज हुआ तो इसका हम क्या बनाएंगे? सी फॉरेन करेंसी रिजर्व विल बी क्रिएटेड. समझा? एंड दिस रिजर्व, वेयर वी रिकॉर्ड द रिजर्व, ऑब्वियसली हम रिजर्व्स को लिखते हैं बैलेंस शीट में, दैट इज व्हाई इट विल गेट it will be shown in the balance sheet, it will be disclosed in the balance sheet. समझ में आया? Anyone facing any of the doubt till here? No? Fine. So we can move ahead then. Okay.